Hello everyone. CA final paper number 5, strategic cost management and performance evaluation. This is the very first lecture, we can say the introduction lecture of this compact batch. This compact batch will be based on new study material released by the ICI in the current month, that is December 2020. Yes, you heard it right. All the content, all the question, all the theories will be covered as per newly study material released by the ICI in the month of December. We are starting the recording of this compact batch on today, that is 18th of December 2020. So since this is the introduction lecture first, so I would like to divide this introduction lecture into 4 parts, where we will discuss about the first 3 content will be related to the introduction part, faculty intro, subject intro, and the third one is batch intro, batch detail, and we will try to cover this in the initial 30 to 35 minutes. Thereafter we will shift to the content delivery, that is formally start the subject with one of the chapters out of the 12 chapters available in our syllabus. Okay, beta? So let's start the introduction part. First of all, the faculty introduction. I am Sharad Agrawal from Indore, Madhya Pradesh, teaching this subject. Earlier cost accounting, then advanced management accounting, and in the new syllabus strategic cost management and performance evaluation since last 15 years. So all the experience of mine, especially teaching CA final student since last 15 years, will be incorporated in this batch. As a teacher, as an experienced teacher, I am very well aware that what are the problematic area for my students. Definitely in this compact batch, we will focus more on that tough concept so that after the completion of this batch, each and every student will be very comfortable in those 3 hours. Yes, my target will always be those 3 hours whenever I will record the lecture for the compact batch. And educational qualification wise, a graduate in commerce in which I was a gold medalist. After that joined LLB in which I was a university topper, and then joined chartered accountancy course in which I was a all India rank holder at CA final level. So this is all about my introduction. Coming to the important introduction of subject introduction and the batch details. Batch detail will cover majority of your queries. What are the questions that will be covered in this batch? Whether case studies will be covered, whether theory will be covered in this batch, whether International Institute questions will be covered, what will be the duration, each and every query I will discuss in detail in part number 3 batch detail. Before that, we will move on to the subject introduction. Commonly known as cost accounting, this subject has been divided into 2 parts. The first part is strategic cost management and the second part is performance evaluation. In the common parlance, we can say the paper number 5 is of cost accounting, but really it's not so. The nomenclature of the subject itself signifies the importance, the depth of the subject. Strategic cost management. First of all, I will discuss this part 1, strategic cost management, in a very short manner. होता क्या है बेटा, पिछले 5-10 सालों से कंपटीशन बढ़ा है, मानते हैं आप? ये दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और ये आज नहीं बढ़ा है कंपटीशन. अगर आप लास्ट डेकेड की बात करें तो लास्ट डेकेड से कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है. आज की तारीख में कंपटीशन इंटेंसिफाइड हो चुका है. तो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, तो कस्टमर के पास, बायर के पास ज्यादा चॉइसेस हो जाती है. तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो सेलर होता है, अब उसको प्राइस कम करना ही पड़ता है, क्योंकि सेल प्राइस डिसाइड करना आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं है, ड्यू टू द इंटेंसिफाइड कंपटीशन. तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी, अगर उस बंदे को अपना प्रोडक्ट बेचना है
तो उसे उसी प्राइस पर मोर और लेस उसी प्राइस पर बेचना पड़ेगा। एग्रीड। कंपटीशन बढ़ने से सेल प्राइस पे प्रेशर आया, नो मोर सेल प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर और द सेलर, इट विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स। तो पहली प्रॉब्लम एक मैन्युफैक्चरर को, एक सर्विस प्रोवाइडर को, एक रीसेलर को, कि आज की तारीख में सेल प्राइस उसके हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथों में है। जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस के आसपास उसको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। यह पहली प्रॉब्लम। सेकेंड इश्यू, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, बायर की एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द सर्विस डे बाय डे इंक्रीज हुई है। आप अपने आप का एग्जांपल ले लीजिए बेटा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो आपने आज से 5 साल पहले खरीदा होगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इवन एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले सकते हैं अपन, पेन ड्राइव ले लीजिए आप। उस समय जो उसकी स्पीड हुआ करती थी पेन ड्राइव की कॉपी करने की, और आज की जो स्पीड आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि कंज्यूमर को प्राइस भी कम चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसे क्वालिटी भी और इंप्रूव चाहिए डे बाय डे। अगर एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ रीसेलर आप उसकी ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते हो, तो कंज्यूमर के पास, बायर के पास ढेरों चॉइस है। वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। कॉम्पिटिटर बहुत खुशी खुशी उसको उसकी प्राइस पर, उसको उसकी क्वालिटी डिलीवर कर देगा, जबकि आप वो नहीं कर पाए तो आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो गया। तो जो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताया, दिन पर दिन सेल प्राइस कम होते जा रही है ड्यू टू द इंटेंसिफाइड कंपटीशन। दिन पर दिन आपको क्वालिटी पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि नाउ डेज कंज्यूमर आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। अब इन दोनों प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से। अगर सेल प्राइस कम हो रही है तो वो एक्सपेक्ट करता है क्वालिटी भी कम हो, या क्वालिटी कम से कम वो मेंटेन रहे, लेकिन नहीं, क्वालिटी पर आपको ज्यादा स्पेंड करना है, लेकिन जो आपको इनफ्लो होगा वो पहले के मुकाबले और भी कम होगा। इस पूरी प्रॉब्लम को डील करेगा आपका पहला पार्ट, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स कवर्ड है। ये आपको बताएंगे कि कैसे आज की तारीख में आप इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे प्रॉफिटेबली। क्योंकि देखिए, मैंने जो भी प्रॉब्लम आपको गिनाया ये रियलिस्टिक है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां हर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही है, इवन वो प्रॉफिटेबल भी है। तो जो नई टेक्निक इवॉल्व हुई है एक कॉस्टिंग वर्ल्ड में, कि कैसे आप इन दोनों चीजों को मैनेज करें जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इन्हीं से रिलेटेड ही आपके 7 चैप्टर से, द इनिशियल 7 चैप्टर रिलेट टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इट्स नॉट कॉस्ट कंट्रोल, इट्स नॉट कॉस्ट रिडक्शन, इट्स कॉस्ट को मैनेज करना, ताकि हम वो प्राइस डिलीवर कर पाए जो मार्केट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, प्लस वही क्वालिटी हम दे पाए जो हमारा कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ताकि हम अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली रन कर पाए। ठीक है बेटा। जो इसका सेकेंड पार्ट है, रिमेनिंग 5 चैप्टर्स रिलेट टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या होगा, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स है, जो भी आपके मैनेजर्स है, आपने उनको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टारगेट दिया था। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब उन्होंने अपना टारगेट फुलफिल कर दिया, तो अब आप उनके परफॉर्मेंस को सिर्फ कंप्यूट नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे, आपको इवेल्युएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन नहीं है, परफॉर्मेंस एफर्टेनमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है। मतलब इवेल्युएशन नॉट ओनली इंक्लूड्स द कंप्यूटेशन पार्ट, बल्कि यहां पे उससे एक स्टेप और है। जैसे एक चैप्टर आपने इंटर लेवल पे पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मान के चलिए उसका कोई एक वेरिएंस, सपोज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आता है। तो अभी तक क्या होता था इंटर लेवल पे, हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कंसेप्ट हमें पता है, जो न्यूमेरिकल डिटेल दी गई थी उसके आधार पे हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कंप्यूट कर लिया, और हमने सामने वाले एग्जामिनर को बता दिया कि भैया इतना इतना प्राइस वेरिएंस आपका एडवर्स है। वो था परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, कि जो आपको स्टैंडर्ड दिया गया था क्या आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, ये हम कंप्यूट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जबकि फाइनल में ना सिर्फ आपको कंप्यूटेशन करना है इन चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, बल्कि उस कंप्यूटेशन को फिर आपको इवेल्युएट करना है। जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटेशन आता है,
प्लस इसमें एनालिसिस आता है। और एनालिसिस दोनों साइड का होता है बेटा, एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से भी आप यहां पे बताएंगे, मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से भी बताएंगे, निगेटिव पॉइंट्स भी यहां पे आप एक्सप्लेन करेंगे उस परफॉर्मेंस के, इवन पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब एक जो अनबायस पोजीशन होती है बंदे की, वो आपको यहां पे डिलीवर करना होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स रिलेटेड टू पार्ट नंबर 1 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, द लास्ट 5 चैप्टर्स बिलोंग्स टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसकी हेडिंग ही इसी को डिनोट करती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर आप नवंबर 2019 का भी पेपर देखेंगे, इट इज द किंग मेकर। इसके बाद जो नवंबर 20 का पेपर हुआ था उसमें भी एक किंग मेकर रहा है, और आने वाले अटेम्प्ट में भी आप मान के चलिए जो जनवरी 21 में अभी अटेम्प्ट ड्यू है, प्लस मई 21, नवंबर 21, ये आने वाले 3 अटेम्प्ट अभी पूरे 2021 के, उसमें भी चैप्टर नंबर 8 बहुत ज्यादा वेटेज रखेगा। तो डेफिनेटली जिसका वेटेज ज्यादा रखेगा इसे, उसको अपन अपनी बैच में भी डेफिनेटली ज्यादा वेटेज देंगे। आप देखेंगे पूरे 12 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा कंटेंट डिलीवरी, सबसे ज्यादा जो मेहनत मैं आपसे कराऊंगा वो चैप्टर नंबर 8 में ही है, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सबसे पहला चैप्टर है। तो अब एक लास्ट चैप्टर बचता है। जब आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे तो टोटल आपके पूरे कंटेंट को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो 13 चैप्टर है एक्चुअली वो कोई अलग से कंसेप्ट उसमें नहीं है, जो आपने राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है, उन्हीं को केस स्टडीज के फॉर्म में जब वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो एक सेपरेट चैप्टर आईसीआई ने बना दिया है, चैप्टर नंबर 13। लेकिन अपन क्या करेंगे इस बैच में, जैसे मान के चलिए चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कोई केस स्टडीज अगर आपको चैप्टर नंबर 13 में दिया है, तो अपन ने क्या किया है नोट्स में, चैप्टर नंबर 2 के साथ जो उससे रिलेटेड केस स्टडीज है उन्हें हमने चैप्टर नंबर 2 के साथ ही रखा है। तो अलग से कोई अपना केस स्टडी वाला चैप्टर नहीं रहेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे सुनिएगा बेटा, अलग से कोई केस स्टडी वाला चैप्टर नहीं रहेगा। जितनी भी केस स्टडी है 100% केस स्टडीज आईसीआई की, चाहे वो स्टडी मटेरियल में दिया हो, चाहे वो आरटीपी में हो, चाहे वो एमटीपी में हो, चाहे वो एडिशनल क्वेश्चन हो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन कवर होगा केस स्टडी का। लेकिन वो चैप्टर वाइज अपन ने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। जो भी चैप्टर अपन लर्न करेंगे उसी चैप्टर के साथ उसकी केस स्टडीज को भी डील करेंगे। तो ये वो आपका पूरा एक सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स है। अगर मार्क्स वाइज अगर अपन बात करें तो आप एक रफली मान सकते हो, इनिशियल 7 चैप्टर्स आपके 50 मार्क्स को बिलोंग करते हैं, लास्ट के 5 चैप्टर्स आपके अगेन 50 मार्क्स को बिलोंग करते हैं। रफ कैलकुलेशन है, 5 to 10 मार्क्स इधर उधर बहुत इजीली शिफ्ट हो चुके हैं पिछले अगर अपन अटेम्प्ट देखें तो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन मैं आज ही करना चाहूंगा बेटा। आईसीआई की वेबसाइट जब आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का एक स्किल असेसमेंट स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, और ये आज से नहीं दिया हुआ है। जब इन्होंने सिलेबस लॉन्च किया था 2017 में, तभी से ये स्किल असेसमेंट प्रिंसिपल इन्होंने लेट डाउन किया है। फाउंडेशन के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है। अपन तो सीधा अपने फाइनल कोर्स में, सीधा अपने पेपर नंबर 5 में अगर मैं आऊं तो आपको क्लियर कट दिखेगा पेपर नंबर 5 में कि यहां पे हमें आईसीआई 3 लेवल पर टेस्ट करेगा। ये मैं आपको वेरी फर्स्ट डे ही और इन द इनिशियल 30 मिनट्स लिए बता रहा हूं बेटा। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट करूं। ऐसा नहीं कि बेटा ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, आपसे चुटकियों में हो जाएगा, ये बैच आप कर लो बस लाइफ सेट है, ना, सब फालतू बात है। यह सब्जेक्ट बहुत टफ है, बहुत मुश्किल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अगर मैंने आपको इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पहले दिन फर्स्ट आवर से ही कम्युनिकेट कर दिया तो जो आपका माइंडसेट है ना वो इस ओर धीरे धीरे डाइवर्ट होगा। तो एट द एंड ऑफ द बैच मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि जो आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सीए फाइनल स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 वो आप डिलीवर कर पाएंगे। तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर आप देखिएगा, जो अपना जो भी अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां से ही ये तीनों लेवल को अपने को धीरे धीरे टच करना है। तो जब आप लेवल 1 देखेंगे, अभी वो क्या है अभी उसको ना देखते हुए अपन पहले भी परसेंटेज देख ले। लेवल 1 में आप देखेंगे तो 10 to 15% कवरेज है। मतलब आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेवल 1 के क्वेश्चन आपसे 10 to 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लेवल 2 45 to 55% कवर करेगा आउट ऑफ योर 100% मार्क्स, एंड जो लेवल 3 है वो 35 to 40% कवर करेगा।
देखिए, सिंपली जो मेहनत ज्यादा है यहां पे वो डेफिनेटली लेवल 2 और लेवल 3 में है। अब अपन इन लेवल के मतलब क्या है जो आईसीए ने कम्युनिकेट किया, ये अगर अपन देखें तो पहला है कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, जो हमारे सिर्फ 10 to 15% मार्क्स कवर करते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल पार्लेंस में मैं बोलूं, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज का मतलब आपको एक बेसिक आइडिया है उस कंसेप्ट का। जैसे एक कंसेप्ट ले लेते हैं अपन, जस्ट इन टाइम एक कंसेप्ट है आपके सीए फाइनल में, तो जस्ट इन टाइम का आपको बेसिक नॉलेज है, उसकी टेक्निकल टर्म्स आपको पता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उनकी जो ऑथराइज्ड डेफिनेशन है, अगर ये आपको पता है तो आईसीआई इसे बोलता है कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। आपको उस चीज का आइडिया है, और अगर हम कोई डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जेआईटी पर आपसे पूछेंगे तो आप उसको बहुत कंफर्टेबली आंसर कर पाओगे, तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। तो यहां पर ये सिर्फ 10 to 15% ही बिलोंग करता है। अब आते अपन लगभग 85 to 90% जो आपका कंटेंट है, जो आपके मार्क्स अलॉटेड है उस 3 आवर्स में, वो है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट एंड इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस पार्ट। अब एनालिसिस और एप्लीकेशन और इवेल्युएशन और सिंथेसिस को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये पार्ट है ना सिर्फ आपको उस जस्ट इन टाइम का बेसिक नॉलेज, बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए जो आपके कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज में कवर्ड है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ के अगर जेआईटी में जस्ट इन टाइम में कोई कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन भी आप करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, अब उस कैलकुलेशन को जब आप लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हो, दैट बिलोंग्स टू योर लेवल नंबर 2 एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट। आई रिपीट, आपको नॉलेज हो गया जस्ट इन टाइम का, आपने लेवल 1 अचीव कर लिया। फिर लेवल 1 अचीव करने के बाद जब आपने उस नॉलेज को न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया, न्यूमेरिकली कन्वर्ट करने के बाद जो जो आपने वर्किंग किया है उसको जब आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो इन डिटेल, तो दैट विल कवर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट, विच विल कवर 45 to 55% ऑफ योर पेपर इन दोस 3 आवर्स। एंड द लास्ट पार्ट, आपको नॉलेज हो गया, आपने उसको कंप्यूट कर लिया, आपके पास ये एबिलिटी भी आ गई कि जो आपने करा है आप उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर पाओ। एंड द लास्ट पार्ट इज, अब आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपन अपना क्लाइंट मानेंगे, अपने क्लाइंट के हिसाब से अब यहां पे रिकमेंडेशन स्टार्ट होता है। और जब भी हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे लेवल 1 नंबर 3 में, तो यहां पे हमें ना सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बोलना है बल्कि निगेटिव पॉइंट्स भी बोलना है। यहां पर लेवल नंबर 3 में आपका इमेजिनेशन स्किल बहुत काम आता है बेटा। लेवल नंबर 2 तक आपका नॉलेज काम आएगा, यहां पे जो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी ना, दैट विल बी प्ले अ मेजर रोल इन लेवल नंबर 3। तो अभी तक अपना ये डिस्कशन हुआ बेटा, जो आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ये टोटल 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है सब्जेक्ट। साथ में बोलिए, पहला स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट किसी को याद है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। टोटल 7 चैप्टर्स है आपके पार्ट नंबर 1 में, एंड टोटल 5 चैप्टर्स है आपके पार्ट नंबर 2 में। जो 13th चैप्टर है दैट इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर, उनको केस स्टडीज को अलग रख दिया। अपन ने अपने नोट्स में हर चैप्टर वाइज वाली केस स्टडी कवर किया, तो 100% केस स्टडी विल बी कवर्ड। फिर अपन ने आया कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ हमें सिर्फ प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली करना है, न्यूमेरिकली हार्डली यू विल गेट 30 to 40% कवरेज आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर। यस, यू हर्ड इट राइट। न्यूमेरिकली अगर अपन बात करें बेटा, तो ये न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ 30 to 40% यहां पे न्यूमेरिकल है। रिमेनिंग जो है वो आपका एनालिसिस इवैल्यूएशन पार्ट है। और जब भी मैं एनालिसिस और इवैल्यूएशन पार्ट की बात करता हूं तो इसमें थ्योरी में कमांड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो पूरा जो भी अपने 140 आवर्स है इस बैच के, कॉम्पैक्ट बैच के, पूरा फोकस रहेगा, इक्वल वेटेज देंगे। थ्योरी का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, केस स्टडीज ज्यादा है तो उस चैप्टर में केस स्टडीज को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। मतलब इस बैच में कहीं आपको अनजस्टिफाइड नहीं मिलेगा कि कोई चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया जबकि आईसीआई उसका उतना वेटेज देता ही नहीं है। पूरा ये बैच डिजाइन किया गया है कि आईसीआई जो एक्सपेक्टेशन रखता है हर एक बंच ऑफ चैप्टर में, जितनी एक्सपेक्टेशन है आईसीआई की मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उतना ही कवरेज आपको अपनी बैच में भी मिलेगा। तो ये 3 लेवल बेटा आपको ध्यान रखने हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, सेकंड लेवल फिर आपको एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। फिर
आईसीआई लगातार लास्ट ईयर से इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। अभी अपन ने पढ़ा लेवल 3 है, अब उन 3 लेवल पर रिक्वायरमेंट पार्ट जब आप देखते हो क्वेश्चन का, तो हर रिक्वायरमेंट पार्ट में अलग अलग वर्ब यूज किए गए हैं। और स्पेशली आप देखिएगा पूरे आपके स्टडी मटेरियल में, इवन एग्जामिनेशन पेपर में भी उन जो वर्ब है उनको हाईलाइट किया गया है या उनको बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। कम्युनिकेशन ये है कि ये जो आपके पास पीडीएफ आपको नोट्स के थ्रू मैं प्रोवाइड करूंगा हार्ड कॉपी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि आपको क्या आता है। आई रिपीट, इस सब्जेक्ट में ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि व्हाट यू नो, व्हाट यू वांट टू आंसर। नो, इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। इस सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, अब जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट पे आते हो, तो रिक्वायरमेंट पार्ट पे जो वर्ब यूज किया गया है, कैलकुलेट, अप्लाई, टेबुलेट, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट वर्ब्स है, करीबन 10 to 15 वर्ब्स आपको यहां पे मिलेंगे। उन हर वर्ब के मीनिंग अलग अलग है। इंपॉर्टेंट ये जाएगा अपने पूरे 140 आवर्स की बैच में, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, कि आपको बार बार ये समझाया जाएगा कि देखिए बेटा रिक्वायरमेंट पार्ट में ये वर्ब यूज की गई है। बार बार अपन इस पीडीएफ को यहां पे क्लास में और आपके बाद जो हार्ड कॉपी रहेगी, बार बार आप उसको रेफर करेंगे इन द इनिशियल 15-20 क्वेश्चंस कि इस वर्ब का मीनिंग क्या है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो रिक्वायरमेंट पार्ट था, देखिए हमने ये डिटेल यहां पे लिखा है क्योंकि ये वर्ब यहां पे डिमांड करता है। हमने उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट पार्ट में वर्ब चेंज हो गया तो हमने ये चीज नहीं किया है। जैसे एक रिक्वायरमेंट पार्ट में एनालिसिस दिया था, जबकि दूसरे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पार्ट में अगर आपको वहां पे इवैल्यूएशन दिया है, तो आप देखिएगा दोनों के आंसर करने का तरीका टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो कम्युनिकेशन क्लियर है पहले दिन से। ये जो सब्जेक्ट है ये डिमांड करता है कि जो आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है, क्या उस अकॉर्डिंगली आपने ड्यूरिंग दिस कोचिंग पीरियड अपने आप को प्रिपेयर किया है, और रिविजन जो आप अपने लेवल पे करेंगे उस पे भी आपको इन वर्ब पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे। अभी अपन ने बैच इंट्रोडक्शन में 3 चीज देखा है, थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर जो 3 लेवल है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आईसीआई का वो, एंड द थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक पीडीएफ आईसीआई ने दिया था जो नए स्टडी मटेरियल के इन द इनिशियल पेजेस ही दिए गए हैं कि अलग अलग वर्ब के क्या क्या मीनिंग है। बढ़ते हैं आगे बैच इंट्रोडक्शन में ही बेटा। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब मेरा रोल और आपका रोल क्या रहेगा इफ 140 आवर्स बैच में जो कॉम्पैक्ट बैच है। यह बात आपको बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगा बेटा कि इस बैच ड्यूरेशन में आपने यह माना कि अभी अपन सिर्फ लेक्चर सुन लेते हैं, बाद में जब अपन अपना फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे देन वी विल फोकस मोर ऑन स्टडी, मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो मान के चलिएगा ये बैच आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी जो आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करेगा इन दैट 3 आवर्स। यहां पर मेरा रोल 50% रहेगा, तो एट द सेम टाइम आपका रोल भी 50% रहेगा, ये आप मान के चलिए बेटा। खासकर ये कॉम्पैक्ट बैच जो है ये स्पेशली हमने उनके लिए डिजाइन किया गया है जिन बच्चों के पास समय कम है लेकिन वो चाहते हैं कि हर एक कंसेप्ट इन डेप्थ कवर हो, प्रिसाइज हो और एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से डिलीवर किया गया हो। तो आप ये मान के चलिएगा कि जब आप इस बैच को कर रहे हो, चूंकि आपके पास समय कम है इसलिए आप एक कॉम्पैक्ट बैच प्रेफर कर रहे हो, नहीं तो आप फिर प्रीमियम बैच दैट इज रेगुलर बैच अडॉप्ट करते। तो इस बैच में आपका ये रोल रहेगा, जब जब जो चैप्टर हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, जब जब आपको उसी समय उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है कि इस बैच में ही आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे करना चाहूंगा स्पून फीडिंग से रिलेटेड। इस पूरी बैच में, और आप मैं सालों से बेटा लास्ट 15 ईयर से मैं इसी कंसेप्ट पर टिका हुआ हूं, से नो टू स्पून फीडिंग। पहली बात तो स्पून फीडिंग होता क्या है पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्पून फीडिंग ये होता है कि कोई भी कंसेप्ट अपन ने स्टार्ट किया, मैंने उसका आपको कंसेप्ट बताया, फिर उसका थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, फिर उससे रिलेटेड एनालिसिस और इवैल्यूएशन पार्ट भी किया।
मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर डिलीवरी पर ध्यान दिया, मैंने उस पर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, तो ये कहलाएगी स्पून फीडिंग। आई रिपीट, मैंने उस कंसेप्ट को डिलीवर किया, मैंने उस क्वेश्चन के जो भी न्यूमेरिकल डेटा उसको कंप्यूट किया, एनालाइज किया, इवेल्यूशन किया एज द वर्क डिमांड। कहीं भी मैंने आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, मतलब आपके माइंड पे मैंने स्ट्रेस नहीं दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इस पे ये कंसेप्ट क्यों लग रहा है, ये वर्ब के कारण हम इस पे ये वाला पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, तो दिस अमाउंट्स टू स्पून फीडिंग नहीं बेटा। इसमें यह होता है कि जब आप बैच करते हो तो आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इस पूरे 140 आवर्स ड्यूरेशन में कहीं भी हमने आपको अपने लेवल पर टेस्ट करने ही नहीं दिया कि एक बार चेक तो करें क्या हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा आईसीआई के लेवल के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस 140 आवर्स बैच इफ आई स्टार्ट स्पून फीडिंग। बट नो, क्या तरीका होगा, ये बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। इस बैच में क्या तरीका होगा अपने बैच डिलीवरी का। सबसे पहले जो भी कंसेप्ट आता है मैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दूंगा। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एज अ टीचर मैं आपको क्या डिलीवर करना चाहता हूं, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो बहुत ध्यान समझिएगा बेटा इसको आप। सबसे पहले जो भी कंसेप्ट स्टार्ट होगा, आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस दैट कंसेप्ट टू यू। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन पार्ट का डिस्कशन कर लेंगे। फिर जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन वो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको मौका दिया जाएगा कि जितना आपने अभी तक लेक्चर में डिलीवरी कंटेंट सुना है, समझा है, क्यों ना एक बार आप अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ द टीचर एक बार आप अपने लेवल पर उसे ट्राई करें। कर लिया, आपको हमने दिया 5 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। जब आपको 5-10 मिनट मिल जाते हैं, फिर साथ में अपन उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कैलकुलेशन है तो कंप्यूट करते हैं कैलकुलेशन, और फिर एनालिसिस और रिकमेंड करते हैं जो भी वर्ब डिमांड करेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा बेटा, जो इनिशियल आपको 5 to 10 मिनट्स मिले थे उसमें आप अपने लेवल पर सोच पा रहे हो कि यार ये क्वेश्चन है, कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। जो रिक्वायरमेंट पार्ट है उसमें ये वर्ब यूज किया गया तो इफ अकॉर्डिंगली मैं क्या आंसर दूंगा। और जस्ट आपके 5 to 10 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जब अपन साथ में डिस्कशन करते हैं तो मेरा रोल उसमें पूरा 100% होता है। फिर आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पहले क्वेश्चन से ही स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। फिर अब मैं उसको समझाऊंगा आपको 100% अपना इन्वॉल्वमेंट करके, तब आप कंपेयर करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने ये लाइन तो पढ़ा था लेकिन इस लाइन को हमने ये वेटेज नहीं दिया, जबकि सर ने हमें समझाया। कंपैरिजन हो रहा है। फिर रिक्वायरमेंट पार्ट में जब अपन आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्ब का क्या मीनिंग है, हमें किस अकॉर्डिंगली यहां पे आंसर देना है। तब आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे बेटा। जब तक आप अपने आप को आईसीआई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ाएंगे, आप ये मान के चलिए कि आपको इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो मेरी टेक्निक है कि पहले हम अपने स्टूडेंट को करने देते हैं, पहले हम अपने बच्चों को करने देते हैं, लेट ट्राई ऑन देयर ओन ना बेटा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत करेगा ना बच्चा, ठीक है, इस 140 आवर्स में गलत करेगा ना, कम से कम वो प्रिपेयर तो हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली। कंप्यूटेशन बहुत आसान होता है बेटा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। कंप्यूटेशन इज नॉट अ बिग डील इन दिस पेपर नंबर 5, but that computation part will consist of only 35 to 40 marks. Remaining part relates to analysis, evaluation, synthesis and theoretical part. वो अगर 60 मार्क्स आपको चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपन यहां पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इन डेप्थ आपके साथ यहां पे डिस्कस किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन बस स्पून फीडिंग नहीं करना है, इसका एक क्लियर कम्युनिकेशन है। पहले क्वेश्चन को आपको अपने लेवल पे ट्राई करना पड़ेगा। जब आप उसको कर लेंगे फिर अपन उसको जब डिस्कस करेंगे, पूरा कॉपी में आपको लिखने का मौका दिया जाएगा एक एक चीज, तब जाके मैं बोलूंगा कि हां, जो आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मैं आपको डिलीवर कर पाया हूं। क्लियर है बेटा, स्पून फीडिंग नहीं करना है उसका कम्युनिकेशन। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस पहले आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा 2 पार्ट।
फिर हमने आईसीआई के 3 लेवल देखा मार्क्स एलोकेशन के, फिर हमने वर्ब देखा एंड लास्ट में हमने देखा कि आपका इन्वॉल्वमेंट यहां पे जरूरी है। इफ 140 आवर्स की बैच को इजीली आप 100 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 40 आवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपको समय दिया जाता है कि क्यों ना एक बार आप अपने लेवल पर इसको ट्राई करो, गलतियां होगी उससे डरिए मत। ये गलतियां आपको इस सब्जेक्ट के एक एक माइन्यूट डिटेल सिखाएगी, ताकि फिर एग्जामिनेशन में ये पेपर आपके लिए फिर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं अपन लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज द बैच इंट्रो। जो भी आपकी नॉर्मल क्वेरीज है, मैंने कोशिश किया हूं कि हर एक क्वेरी जो मुझे एवर टीचर मेरा 15 ईयर से लगता है कि जब भी अपन कॉम्पैक्ट बैच की बात करते हैं तो ये क्वेरीज बच्चे के मन में बिल्कुल आती है, तो उनको अपन यहां पे रिजॉल्व करेंगे। और भी आपसे जो क्वेरी यहां पे कवर्ड नहीं हुई, अगर वो आपके मन में है तो बिल्कुल जो आपको इस वीडियो लेक्चर में मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया बेटा, उसमें आप व्हाट्सअप करके वाली क्वेरी भी अपनी क्लियर कर सकते हो। क्वेरीज आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। तो बैच इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो मार्केट में अगर आप देखते हैं बेटा 3 टाइप की बैच है। सबसे पहली क्रैश बैच, कॉम्पैक्ट बैच और प्रीमियम बैच। उसको आप रेगुलर बैच भी बोल सकते हो, फुल बैच भी बोल सकते हो। जो ये बैच है 140 आवर्स की, इट इज नाइदर अ प्रीमियम बैच नॉर अ क्रैश बैच। न ये क्रैश बैच है न ये प्रीमियम बैच है। क्रैश बैच क्या होती है, उसमें ये अज्यूम किया जाता है, जब भी क्रैश बैच, मैं कॉम्पैक्ट बैच की बात नहीं कर रहा हूं जो अपनी बैच है, पहले क्रैश बैच के बारे में बता दूं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रैश बैच में माना जाता है कि एक बार स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट अपने लेवल पर सेल्फ स्टडी के थ्रू या कोचिंग क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कर लिया है, अब उसको 80 to 100 आवर्स में उसको ये एक फास्ट कंसेप्ट का रिवीजन चाहिए पूरा, तो वो बच्चे क्रैश बैच अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक लिमिटेशन होता है, एज अ टीचर भी हम ये मान के चलते हैं क्रैश बैच में कि बच्चों को कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो जो नहीं आता हम भी ये मान के चलते हैं वो उसको डिलीवर हो जाएगा। जबकि जो कॉम्पैक्ट बैच है, हम इसमें बिल्कुल मान के नहीं चलते हैं कि जो बच्चा हमें 140 आवर्स दे रहा है उसने इस सब्जेक्ट को कभी भी पढ़ा है। हमें मान के चलते राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर टिल द लास्ट लेक्चर हमारे सामने जो स्टूडेंट है वो इस सब्जेक्ट के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इस कॉम्पैक्ट बैच को। क्रैश बैच के समान ये अज्यूम नहीं किया जाएगा कि आपको कुछ आता है और कुछ नहीं आता है, हम तो ये मान के चलेंगे आपको कुछ भी नहीं आता है। इवन टू योर सरप्राइज, जब इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे एक चैप्टर होता है इंटर में ओवरहेड, फिर दूसरा चैप्टर होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट, तो कहीं ना कहीं फाइनल लेवल में जो 2-3 चैप्टर है इनका लिंकेज है। तो इवन इन दिस कॉम्पैक्ट बैच जो भी इंटर लेवल के बेसिक आएंगे वो भी आपको यहां पे कवर किए जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल 2 लेक्चर्स जो होते हैं वो इंटर के बेसिक से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब भी अपन चालू करेंगे उसका 3rd लेक्चर ऑनवर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही फाइनल लेवल का होता है। पहले 2 लेक्चर तो आपको इंटर लेवल के ही लगेंगे, क्योंकि इंटर लेवल का ही एक बार पूरा समझाया जाता है मानकर कि आपने इंटर पे कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से नहीं पढ़ा है। फिर ओवरहेड वाला चैप्टर, उसमें ओवरहेड की जो अकाउंटिंग होती है उसमें भी आप देखेंगे लगभग 1.5 लेक्चर डेडिकेटेड है। जब भी वो चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 10 अपन फाइनल लेवल का, तो पहले इंटर का ओवरहेड आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही फिर फाइनल लेवल का ओवरहेड स्टार्ट किया जाएगा। तो कॉम्पैक्ट बैच में आप अश्योर हो सकते हो बेटा ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो एक नेचुरल सा डाउट आता है, सर जब इसी बैच में फिर सब कुछ कवर्ड है 140 आवर्स बैच में, तो क्यों कोई बंदा फिर 230 आवर्स वाली बैच लेगा? पेमेंट भी डबल है ना। कॉम्पैक्ट बैच डेफिनेटली आपको विद इन 7,000 8,000 मिल जाती है, ये रेगुलर बैच आपको 12 to 14,000 स्पेंड करना पड़ता है। तो देखिए जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ही बोला था बेटा, ये कॉम्पैक्ट बैच और प्रीमियम बैच में अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो दोनों में ही 100%, मैं अपनी बैच की बात कर रहा हूं, दोनों में चाहे कॉम्पैक्ट बैच हो चाहे प्रीमियम बैच हो, आईसीआई का 100% कवरेज है। एक एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक एक केस स्टडीज कवर्ड है जब मैं प्रीमियम बैच और कॉम्पैक्ट बैच की बात करता हूं। मेजर डिफरेंस दोनों में यह है, सबसे पहला डिफरेंस
और वो नेचुरली रहेगा ही बेटा, है ना। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके सामने जो बात कर रहा हूं वो कॉम्पैक्ट बैच के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन, एक नेचुरल सी क्वेरी आती है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉम्पैक्ट बैच में अपन इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, इन कॉम्पैक्ट बैच वी विल कवर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ऑल्सो। वही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस प्रीमियम बैच में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, कॉम्पैक्ट बैच में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसके पास समय बहुत कम है, हार्डली 6 to 8 मंथ्स है, लेकिन उसको सब्जेक्ट बहुत ज्यादा भी कंप्लीट करना है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से डिलीवर करते हैं हम कंटेंट, लेकिन इतना डिलीवर करते हैं कि वो एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल रहे। प्रीमियम बैच में हम एग्जामिनेशन को तो टारगेट करते ही है, साथ में हम उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब्जेक्ट कैसा लगता है उसके बारे में भी बहुत इन डेप्थ डिस्कशन होता है वहां पे। तो ये दूसरा डिफरेंस वहां पे टाइम का। तो रेस्ट एश्योर बेटा, कॉम्पैक्ट बैच में हर कुछ कवर्ड है या क्रैश बैच नहीं है, इसको आप एक फुल बैच भी मान सकते हो। बस जिनके पास टाइम कम है और जो सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट चाहते हैं डिस्कशन, कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात नहीं चाहते जो बाद में काम आएगी, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से हर कुछ इस कॉम्पैक्ट बैच में आपको कवर्ड मिलेगा। फिर रिकॉर्डिंग, जैसा मैंने एकदम इनिशियली बोला था, आज हम 18 दिसंबर 2020 को इसको स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन न्यू स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई, और एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इसको जनवरी 31 ऑन और बिफोर इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो गूगल ड्राइव स्टूडेंट है उनके लिए तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर वीक हम उसको 5 to 6 लेक्चर गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, और जो पेन ड्राइव स्टूडेंट्स है उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको जो पेन ड्राइव है वो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में डिलीवर होगी, ताकि बच्चा अगर दिसंबर 2020 में भी ये बैच ऑप्ट करता है तो वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकता है, कहीं भी स्टडी ब्रेक नहीं होगी, चाहे वो जी ड्राइव पे जा रहा है चाहे वो पेन ड्राइव पे जा रहा है। क्वेश्चन कवरेज आईसीआई का 100% मटेरियल न्यू स्टडी मटेरियल बेस्ड रहेगा, जिसमें 2-3 नई चीजें दी गई है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। और जब मैं आईसीआई की बात करता हूं तो फिर वो स्टडी मटेरियल से नहीं होता है, उसमें आरटीपी, एमटीपी, एडिशनल क्वेश्चन, गुजरात के जो अलग से पेपर हुए वो वाला पेपर, प्लस एग्जामिनेशन पेपर भी कवर्ड है। मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आप ये बैच ऑप्ट कर रहे हो तो आप ये रेस्ट एश्योर हो सकते हो कि आईसीआई का 100% कवरेज आपको इस कॉम्पैक्ट बैच में मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको अभी कमिटमेंट किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ड्राफ्ट किया गया ना बेटा, चाहे पहला पार्ट हो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, चाहे सेकंड पार्ट हो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जब आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखते हो तो वो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन की जो बॉडी है उससे लिया गया है उसका बेसिक आइडिया, और जो सेकंड पार्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का वो ACCA जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वहां से लिया गया है। तो हमें एज अ टीचर लगता है कि नहीं, आईसीआई ने ये जो क्वेश्चन दिया ये तो करना, ये तो बेयर मिनिमम है, लेकिन इसके अलावा भी कॉम्पैक्ट बैच में हमें कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस करने चाहिए। तो लगभग आप देखेंगे 25 to 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अपन ने इस बैच में भी कवर किया है। तो यहां पे फुल कवरेज आपको मिल रहा है आईसीआई का अलोंग विद द इंटरनेशनल फ्लेवर। बैच ड्यूरेशन जो रहेगा 40 लेक्चर्स है, ईच लेक्चर 3.5 आवर्स, तो 140 आवर्स में हम आपको ये पूरा कंटेंट डिलीवर करेंगे विद द नॉर्मल स्पीड। पहले लेक्चर में जो हमारी स्पीड होगा, आई चैलेंज पर्सनली लास्ट लेक्चर में भी वही स्पीड आपको मिलेगी। अगर हमें कंटेंट लगता है कि थोड़ा ज्यादा है तो हम इसको 150 कर लेते, लेकिन कहीं भी 140 के ही टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा अबाउट द क्वालिटी कंटेंट डिलीवरी, है ना। मुझे अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है 140 आवर जो हमने अभी कमिटमेंट किया है, 30 लेक्चर हो चुके हैं, 35 लेक्चर हो चुके हैं, हमें लग रहा है कि नहीं ये बैच 145 आवर्स जाएगी, आई एम वेरी मच रेडी। मैं प्रेशर में नहीं आता कि मुझे ये बैच 140 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। कोशिश पूरी होती है, पूरा प्लान मैनर पे ये बैच रिकॉर्ड होती है कि किस लेक्चर में हमें क्या डिलीवर करना है कंटेंट, पूरा प्लान मैनर पे। फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें आईसीआई इशू करता है तो हम वो 2 to 5 आवर्स का गैप लेके चलते हैं। तो 99% प्रोबेबिलिटी है बेटा ये लेक्चर आपको, ये बैच पूरी आपको 140 आवर्स में डिलीवर होगी। 1% चांस रहता है कि आप 2 to 5 आवर्स प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। 2 to 5 आवर प्लस आप करके चलिए, ताकि कभी कोई एक्स्ट्रा चीजें हमें डिलीवर करना है, आईसीआई ने कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर किया ड्यूरिंग द बैच, तो वो हम आपको डिलीवर कर पाए। अब अगर मैं कवरेज की बात करूं, इसमें टोटल 140 आवर्स में से कवरेज अपना कितना होगा,
तो जब आप देखेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन को लगभग अपन ने 140 आवर्स में से 30-40% ही टाइम दिया है। मिनिमम बता रहा हूं मैं, 30% टाइम विल बी डेडिकेटेड टू प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगभग आप देखेंगे 30% बैच का टाइम जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, जो उनके इंटरप्रिटेशन है थ्योरेटिकल डेफिनेशन के, वो उसको डेडिकेटेड है। एंड द रिमेनिंग 60% विल बी रिलेटेड विथ एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस पार्ट, जो उसका क्रीम 40%। एनालिसिस एंड एनालिटिकल पार्ट पे सबसे ज्यादा वेटेज है, क्योंकि अगर आप 100 मार्क्स के पेपर की बात करो तो लगभग 40 to 45% आपका पेपर एनालिसिस ओरिएंटेड आता है, 30 to 35% आपका न्यूमेरिकली आता है। एंड थ्योरेटिकली जब आप देखेंगे तो वहां पे थ्योरेटिकली आपको 15 से 20% डायरेक्टली मिलेगा। इनडायरेक्टली जब आप उसी को एक्सप्लेन करते हो एनालिसिस पार्ट में, तो कहीं ना कहीं फिर वो थ्योरेटिकल नॉलेज कवर्ड होता है। तो हर कुछ कवर्ड है, रेस्ट एश्योर कुछ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया गया है आज तक कोई बैच में, कॉम्पैक्ट बैच में, ना ही ये बैच आपकी जो है इसमें किया जाएगा। ठीक है, और जो बैच रहेगी ये जरूर जनवरी 21 में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके पहले ही आप ये बैच ऑप्ट कर सकते हो बेटा। जैसे मैंने आपको बताया, जी ड्राइव पे रेगुलरली हर वीक हम 5 to 6 लेक्चर यहां पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो भी जनवरी 21 के बाद अपडेशन होते हैं, वो पूरे अपडेशन आपके अटेम्प्ट तक, चाहे आपका अटेम्प्ट मई 21 हो, चाहे आपका अटेम्प्ट नवंबर 21 हो। यस, ये बैच हम प्लान कर रहे हैं नवंबर 21 तक के लिए। तो नवंबर 21 तक का भी अगर आपका अटेम्प्ट है, कोई टेंशन नहीं है, जनवरी 21 तक का इसमें अपडेटेड है। इसके अलावा जो भी अपडेशन आएंगे वो रेगुलर बेसिस पर, जैसे आरटीपी में कुछ नया आया, एमटीपी में कुछ नया आया, तो सब चीजें आपको यहां पे डिलीवर की जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो, उस अटेम्प्ट तक आपको पूरा अपडेटेड मटेरियल देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं, मैं 100% आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू ही पूछे। कॉल जनरली बेटा हम एंटरटेन नहीं करते, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉल में हम आप क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाती है, तो हम व्हाट्सएप का मेजर यूज करेंगे यहां पे, सोशल मीडिया का आप उसके थ्रू पूछे। टेलीग्राम में आप एक्टिव है तो उसके थ्रू। ईमेल हम भी नहीं चाहेंगे आप करें, क्योंकि दो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो उन दोनों मीडियम के द्वारा आप हमें पूछ सकते हो। फिर भी अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो, तो एक लास्ट ऑप्शन हमने रखा ईमेल वाला, उससे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। क्वेरी के लिए कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो छोटा डाउट हो चाहे वो बड़ा डाउट हो, आपका वो राइट है, और हमारी ड्यूटी है कि उस क्वेरी को सॉल्व करना। मेरे बच्चों की जो क्वेरी होती है, मेरा कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ, मेरी कोई जूनियर फैकल्टी उसको सॉल्व नहीं करेगी। मैं खुद अपने नंबर पर ही आपको क्वेरी बुलाता हूं, मैं खुद उसे डिलीवर करूंगा। हो सकता है वो क्वेरी आपकी 12 आवर्स में सॉल्व हो सकता है वो 24 आवर्स में सॉल्व हो, लेकिन वो होगी मेरे द्वारा और आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पर ही। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस बैच। नाउ लेट्स स्टार्ट द कंटेंट डिलीवरी, है ना। तो अब अपन यहां से फॉर्मली अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। टोटल 12 चैप्टर्स है अपने पास। इन 12 चैप्टर्स में से सबसे पहले अपन चालू करेंगे चैप्टर नंबर 10। यहां पे थोड़ा सा रीशफल करेंगे, अपन आईसीए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, क्योंकि एज अ टीचर जो लास्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस है वो देखा गया है कि जो कंसेप्ट ओवरलैप होते हैं, हर चैप्टर्स में काम आते हैं, वाले चैप्टर अपन पहले लेते हैं, ताकि बाद में ये दिक्कत ना है कि यार ये वाला कंसेप्ट हुआ नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में ही रह जाता है वो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट लेक्चर से, चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। स्टार्ट कीजिए बेटा ना, लिखिए कॉपी में, चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का, जिसका ना सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है,
बल्कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे जो यहां पे एक आप टॉपिक पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपको चैप्टर नंबर 11 में भी काम आएगा, चैप्टर नंबर 12 में भी काम आएगा, और अगर अपन फर्स्ट पार्ट की बात करें तो चैप्टर 2, 3, 4 में भी ये कंसेप्ट आपको काम आता है। तो एक ऐसा चैप्टर है जिससे ना सिर्फ इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्कि इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको दूसरे चैप्टर्स में भी हेल्प करते हैं। होता क्या है बेटा, प्रैक्टिकली आज के एनवायरनमेंट में आपको एक सिंगल टेक्निक लेकर अपना बिजनेस नहीं कर सकते, 2 या 3 टेक्निक आप कंबाइन करते हैं तब जाके वो कंसेप्ट आप रियल लाइफ में लगा पाते हैं। तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला जो कंसेप्ट है वो मल्टीपल, जैसे वो जीआईटी सिस्टम के साथ लग जाएगा, वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एनवायरनमेंट में लग जाएगा, वो आप जब बजट बना रहे हो तो एबीसी एनवायरनमेंट में कैसे बजट बनाया जाता है, मतलब मल्टीपल एरिया में उसका यूज है। इसलिए अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। मैं पहले भी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर का, फिर अपन इसको राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है अपन ने अपने पर्पस के लिए इसको टोटल 4 पार्ट में बाइफरकेट किया है। जो चैप्टर है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, टोटल 4 पार्ट में अपन ने इसको बाइफरकेट किया है। सबसे पहला पार्ट है आपका इंटर का, सीए इंटर का बेसिक। एक चैप्टर हुआ करता है सीए इंटर पे ओवरहेड करके, ओवरहेड अकाउंटिंग, तो उसका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में। तो जो पहला पार्ट रहेगा वो बेसिक ऑफ सीए इंटर, जो आपको इस चैप्टर में मदद करेगा, उसके बिना इस चैप्टर के कंसेप्ट में आपको ग्रिप नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहला पार्ट वो है बेसिक ऑफ सीए इंटर। सेकेंड पार्ट अपना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, मतलब जो आपने इंटर में ओवरहेड अकाउंटिंग पढ़ा था उसी को मॉडर्न अप्रोच के द्वारा कैसे करना है, उसी का नॉमेनक्लेचर होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई रिपीट, जो चैप्टर इंटर लेवल पे ओवरहेड अकाउंटिंग के नाम से है, उसी को अगर हम मॉडर्न अप्रोच का एक तड़का दे तो वो कहलाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो हमारा सेकेंड पार्ट होगा इस चैप्टर का। थर्ड पार्ट होगा सीपीएस, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, एंड द लास्ट पार्ट विल बी डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो टोटल 4 पार्ट में कवर्ड है। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बात करें तो लास्ट के जो 2 पार्ट है ना, सीपीएस कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड डीपीपी डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ये 2 ही पार्ट रेलिवेंट है। लेकिन अगर इनिशियल 2 पार्ट में आपकी ग्रिप नहीं है तो ये 2 पार्ट आप नहीं कर पाएंगे। प्लस आगे चल के दूसरे चैप्टर में जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है तो वहां पे इश्यू आएगा। तो अपन ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के लिए तैयार कर रहे हैं, ये चैप्टर अपने को वो भी पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में जो आगे चल के अपने को दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक करेगा। तो लिखिए बेटा कवरेज क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक बेसिक ऑफ सीए इंटर। आज का लेक्चर और मान के चलिए कल का सेकेंड लेक्चर का हाफ लेक्चर आपका बेसिक ऑफ सीए इंटर पे जाएगा। ये लेक्चर, ये बैच हम बहुत इजीली 125 आवर्स में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने इसको इंटेंशनली 140 आवर्स रखा कि हर वो चीज जो इंटर के बेसिक की आपके फाइनल में काम की है वो भी आपको यहां पे राइट फ्रॉम जीरो पढ़ाया जाए, ताकि हम ये अज्यूम कर पाए कि हमारे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, हमें ही उसको इंटर का जो बेसिक है जो यहां पे काम का है वो भी हमें इसको डिलीवर करना है। एट द सेम टाइम आईसीए की फाइनल लेवल की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी उसको डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला बेसिक ऑफ सीए इंटर। सेकेंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। थर्ड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। साथ में लिखना है बेटा आपको ना, ये पूरा आप मान के चलिए बेटा जो जो स्क्रीन में लिखा है हर चीज आपकी कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस बैच को कंप्लीट करने के बाद सेल्फ रिवीजन स्टार्ट करोगे तो ये बहुत बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो हर एक चीज प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आपसे,
हर एक चीज जो स्क्रीन में आपको दिख रही है ये बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जिसको कॉमनली इसका एब्रीवेशन भी बोला जाता है सीपीएफ, इसका एब्रीवेशन होता है एबीसी। एंड द लास्ट वन, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डीपीपी। तो 4 टॉपिक में अपन ने इसको डिवाइड किया है, इस पूरे चैप्टर को। चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। जिसमें स्टार बनाइए आप कवरेज नंबर 3 और कवरेज नंबर 4 में, और स्टार का मतलब लिखिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा, इस चैप्टर से अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 से ही आएगा। पार्ट नंबर 1 अपन इस पूरे चैप्टर में ग्रिप बनाने के लिए कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 आपको मदद करेगा पार्ट नंबर 3 और 4 में भी, अलोंग विथ एबीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा सीए फाइनल में, जो सेकंड पार्ट है अपना। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आने वाले लगभग मान के चलिए हर एक चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं वो दूसरे कंसेप्ट के साथ मर्ज होते हुए मिलेगा कि उस एनवायरमेंट में अगर एबीसी भी अप्लाई हो रहा है तो फिर हम कैसे उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो माना कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक अलग से चैप्टर है आपके इंटर में ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो न्यूमेरिकल पार्ट वहां पे कवर कर लिया है, लेकिन उसका कंसेप्चुअल पार्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 अलॉन्ग विथ अदर चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो दिस इज अबाउट द कवरेज कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हर एक चैप्टर की एक पंच लाइन होती है। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इस पंच लाइन का? देखिए सीए फाइनल लेवल, मैं पहले ही दिन क्लियर कर देता हूं, ये कभी भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए ऑटो पेपर्स में, ऑन ऑल द 8 पेपर्स, कि जो कंटेंट जो नोट्स आपके पास है उसी में से 100% पेपर आएगा। सीए इंटर में ही अज्यूम कर सकते हो, सीए फाउंडेशन में तो बहुत इजीली अज्यूम कर सकते हो, बट एट सीए फाइनल लेवल नेवर एक्सपेक्ट कि जो भी सब्जेक्ट आपके पास जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, अगर आप वो पढ़ लिए तो 100% उसी में से आएगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सीए फाइनल लेवल में ये जरूर अश्योरेंस है बेटा, आटो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कि 80-85% जो कंटेंट है उस पेपर का वो वहीं से आएगा जो आपने कंटेंट पढ़ा है अपने स्टडी मटेरियल से या कोचिंग मटेरियल से। लेकिन 10-15% हमेशा ही ये गुंजाइश होती है कि जो आपने कंटेंट में नहीं पढ़ा ड्यूरिंग योर रिवीजन, ड्यूरिंग योर कोचिंग पीरियड, वो उससे बाहर भी कोई कंसेप्ट आ सकता है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 10-15%। तो मैं क्या आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, हर एक चैप्टर की अपनी पंच लाइन होती है जिसके आधार पर वो चैप्टर बेस्ड है। अगर वो पंच लाइन पर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो ना सिर्फ आपका वो 80-85% कंटेंट कवर होता है, बल्कि जो कंटेंट आपने ड्यूरिंग द कोचिंग पीरियड, रिवीजन पीरियड नहीं भी पढ़ा है, अगर ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो फिर उसको कैसे करेंगे? इन्हीं पंच लाइन जो 2 से 3 लाइन की होती है, इसको अगर आप और एनालिसिस कर ले उस कंसेप्ट के साथ जो न्यू कंसेप्ट आया है, मेरा ऐसा मानना है कि फिर आप पूरा 100% पेपर के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले पाओगे। वो क्या है पंच लाइन, इसको आप कोशिश कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हमेशा आपको स्क्रीन में रेड पेन के थ्रू लिखी हुई मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आज अगर आपके पास नहीं है ठीक है, लेकिन फ्रॉम लेक्चर नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 जो इस लेक्चर का रहेगा, हाँ एक और कम्युनिकेशन है, हम अपने डेली 3.5 आवर्स के लेक्चर को 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स का होता है। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जब आपका पार्ट नंबर 2 आवर्स का लगभग खत्म हो जाए तो आप एक ब्रेक लीजिए 10-15 मिनट्स का, उसके बाद ही आप पार्ट 2 चालू कीजिए, क्योंकि लगातार 3.5 आवर्स में आपका कहीं ना कहीं रिटेंशन पावर फिर कम रहता है ना। तो
रेड पेन आपको हमेशा मेंटेन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमेशा आपको रेड पेन से लिखना है, ताकि जब आप सेल्फ रिवीजन करें तो फिर जो रेड पेन से लिखा हुआ मैटर है इस पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे पाओ। कॉपी अभी ही कंप्लीट होनी चाहिए, अभी ही आपको उस रिवीजन के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें उस रिविजनरी पीरियड में किस पर एक्स्ट्रा वेट देना है, कौन सा कंसेप्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए बेटा, मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। लिखने के बाद बेटा इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ना सिर्फ जो मैंने आपको बताया वो 85% के लिए भी काम आएगा, बल्कि कोई नया कंसेप्ट भी आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही रहेगी टू द ट्यून ऑफ 15%। वो नया कंसेप्ट भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है तो इन लाइन से वो बहुत इजीली आप उसको मैनेज कर पाएंगे। मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और ऊपर लिख दीजिए एबीसी। एबीसी की पंच लाइन है ये, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की पंच लाइन है, मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले वर्ड पे आता हूं मैं, मॉडर्न अप्रोच। अप्रोच नहीं बोला है यहां पे, मॉडर्न अप्रोच बोला है। अगर अप्रोच बोलता तो अपन मान सकते हैं ये अकेली अप्रोच थी, लेकिन जो वर्ड यूज किया गया है वो मॉडर्न अप्रोच वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब इस अप्रोच से पहले भी कोई ना कोई अप्रोच रही होगी, तभी तो ये मॉडर्न अप्रोच है ना, नहीं तो नॉर्मली अप्रोच नाम लिखते हैं अपन इसको। तो इस अप्रोच से भी पहले कोई ना कोई अप्रोच लिखी गई होगी, तो अपन उसको नॉर्मली अपने लिए बोल देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो एक अप्रोच ऑलरेडी है मार्केट में जिसको अपन ट्रेडिशनल अप्रोच बोलेंगे। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इसको अपन ने एक नई अप्रोच बोला जिसको नाम दिया अपन ने मॉडर्न अप्रोच। किस पर्पस के लिए? कॉस्ट के लिए नहीं, सिर्फ ओवरहेड के लिए। अभी अपन देखते हैं इसका बेसिक। जब आप अपनी कॉस्ट की बात करते हैं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम यहां पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्ट में ओवरहेड एलिमेंट की, मतलब जो डायरेक्ट एलिमेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। ये जो अप्रोच है ये कॉस्टिंग के लिए नहीं है, कॉस्ट के लिए नहीं है, ये अप्रोच है ओवरहेड कॉस्ट के लिए। ठीक है, फिर एक और टेक्निकल टर्म यहां पे आ रही है, एब्सॉर्प्शन। इन द ड्यू टाइम इसको भी डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सॉर्प्शन। तो लेट इट इज वेरी क्लियर कि हमारे पास एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के लिए दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। हम मॉडर्न अप्रोच को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसा जो आपने पार्ट नंबर 1 लिखा है बेटा, बेसिक ऑफ सीए इंटर, इट इज नथिंग बट ट्रेडिशनल अप्रोच। साथ में बोलिएगा ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर, आगे बोलिए, एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो जो बेसिक ऑफ सीए इंटर है, जो सीए इंटर में एक आपको टॉपिक था ओवरहेड अकाउंटिंग का, दैट इज नथिंग बट ट्रेडिशनल तरीके से कैसे हम अपने ओवरहेड को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, लेकिन ये मॉडर्न अप्रोच है, या इसका दूसरा नाम भी है लॉजिकल अप्रोच है। तो लिखिए आप, एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कैन बी डन, एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कैन बी डन through the following two approaches. Absorption of overhead can be done through the following two approaches. Next line में लिखिए बेटा, first approach, traditional approach. सी इंटर का एक टॉपिक हुआ करता है ओवरहेड, ये इससे रिलेटेड है। सेकेंड अप्रोच का नाम है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
तो जो अपने पहले दो पार्ट है चैप्टर के, ये इसी से रिलेटेड है। दोनों ही अप्रोच डील करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को। अपन सबसे पहले आज अभी स्टार्ट करना चाहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, दैट इज सीए इंटर का जो बेसिक है उसको कवर करेंगे। जब आपको वो चीज समझ में आएगी तो फिर आपको पता लगेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसे क्या ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक नहीं होते तो नई मेथड भी नहीं आती। ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसे क्या ड्रॉबैक थे जिसके कारण एक न्यू मेथड का इवॉल्वमेंट हुआ, जिसको हमने बोला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डायरेक्टली नहीं चालू कर पाएंगे कोई, जब तक आपको एग्जिस्टिंग मेथड नहीं पता हो, फिर उसके बाद उसके ड्रॉबैक नहीं पता हो, तो आप एप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे कि जो न्यू मेथड इवॉल्व हुई है इसमें हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है ओवरहेड का। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है पहले दो पार्ट को क्लियर करना, ट्रेडिशनल मेथड और फिर उसके ड्रॉबैक, तभी जाके फिर अपन मॉडर्न अप्रोच चालू कर पाएंगे। तो आज अभी इस लेक्चर में अपन ट्रेडिशनल अप्रोच ही चालू कर रहे हैं। कल वाले लेक्चर में अपन ड्रॉबैक भी देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक है अपने एग्जिस्टिंग मेथड में, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड में, जिसके कारण हमें एक नई मेथड की जरूरत पड़ी जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर ओवरहेड। हेडिंग दीजिए आप, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर ओवरहेड। ठीक है बेटा, चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है अपने को। सबसे पहले अपन कॉस्ट एलिमेंट पर ध्यान देते हैं कि व्हाट आर द कॉस्ट एलिमेंट, उनको बाइफरकेट कैसे किया जाता है, फिर अपन इसको और आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए इस कंसेप्ट में, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 की हेडिंग है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अभी अपन ने वो स्टार्ट नहीं किया है। जो सीए इंटर का जो बेसिक है, जो इस चैप्टर में आपको काम आएगा, सबसे पहले अपन आज पूरे लेक्चर में उसी को डील कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए बेटा, चूंकि ये सीए इंटर का है तो आपको भी पार्टिसिपेट करना है इसमें। आप मुझे बताइए रिकॉल करके, मैं आपको देना चाहूंगा 30 सेकेंड टू 1 मिनट, व्हाट आर द 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला लेक्चर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सीए इंटर का थोड़ा रिकॉल कीजिए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको याद आ जाएगा 3 एलिमेंट क्या क्या होते थे। 30 सेकेंड टू 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। बोलो बेटा, थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं आपको। सबसे पहला होता था मटेरियल। अब आपकी बारी है, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड एलिमेंट क्या होता था? कॉस्ट एलिमेंट। वेरी गुड, सेकेंड एलिमेंट इज लेबर। थर्ड एलिमेंट में क्या था जरा याद करिए। यहां पे थोड़ा सा ट्रिकीनेस है, जनरली बच्चा यहां पे गलती कर देता है एट फाइनल लेवल, क्योंकि बहुत बेसिक है सीए इंटर का। पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड। सही है? नहीं बेटा ना, तीसरा ओवरहेड नहीं है, तीसरा है एक्सपेंस। So there are 3 elements of cost. The first one is material, the second one is labor, then the third one is expense. हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को 2 फर्दर बाइफर्केशन दिए गए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को हमने फर्दर 2 पार्ट में बाइफर्केट किया, डायरेक्ट एलिमेंट एंड इनडायरेक्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यह है
कैसे आप बाइफरकेट करेंगे मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और जो क्राइटेरिया मटेरियल के लिए यूज होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, वही क्राइटेरिया आपके लेबर के लिए भी यूज होगा, वही एक्सपेंसेस के लिए भी यूज होगा। सो कैसे बाइफरकेट करेंगे, क्या कुछ याद आ रहा है किसी बच्चे को? हाउ टू बाइफरकेट, ये मेरे सामने मटेरियल है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सेम लेबर के लिए जो एक आइडेंटिफिकेशन आपने मटेरियल के लिए रखा है, 100% वही आइडेंटिफिकेशन आपको लेबर और एक्सपेंस के लिए भी वही आइडेंटिफिकेशन होगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, what is the criteria to bifurcate a cost element into direct cost element and indirect cost element? रिकॉल कीजिए बेटा थोड़ा। Similar will be the criteria for all the three element of cost. देखिए, the criteria is very simple. अगर वो डायरेक्ट मटेरियल है या वो डायरेक्ट लेबर है या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इट डजंट मैटर। अगर वो डायरेक्ट है तो उसको दो आइडेंटिफिकेशन रहेंगे, दोनों क्राइटेरिया एट द सेम टाइम उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके वो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। उन दो क्राइटेरिया में से अगर एक क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता है, then that material, that labor or the expense as the case may be will be classified as indirect one. So अब अपन समझते हैं वो क्या दो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप कोई भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को डायरेक्ट बोलेंगे। मैं लिखाऊंगा बेटा, आप लिखेगा मत प्लीज, आप सिर्फ सुनने में ध्यान दीजिए, मैं वो आपको आपकी कॉपी में लिखाऊंगा। पहला क्राइटेरिया ध्यान समझिएगा, प्रोडक्शन के चेंज होने पर वो एलिमेंट चेंज होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया बोलिए क्या है? प्रोडक्शन अगर चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, प्रोडक्शन अगर चेंज हुआ, प्रोडक्शन मतलब वॉल्यूम, प्रोडक्शन अगर चेंज हुआ, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ, तो मेरा क्या वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी चेंज हुआ? पहला क्राइटेरिया ये। सेकंड, क्या ये जो चेंज हो रहा है एलिमेंट में, क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है? सेकेंड एलिमेंट क्या है? पहला था चेंज होना चाहिए, सेकेंड अब चेंज डायरेक्ट प्रपोर्शन में भी हो सकता है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में भी हो सकता है। तो जितने परसेंट से मेरा प्रोडक्शन चेंज हुआ, उतने ही परसेंट से अगर मेरा वो एलिमेंट भी चेंज हो जाए, तो मैं उसको बोलूंगा यस, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हुए, तो यू विल बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए कम ऑन बेटा, दोनों वापस से बोलिए क्या क्या क्राइटेरिया थे, फिर मैं आपको लिखाऊं। पहला क्राइटेरिया क्या था? प्रोडक्शन के चेंज होने पर मेरा खर्चा भी चेंज होना चाहिए, मेरा कॉस्ट एलिमेंट भी चेंज होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी? जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज हुआ है, उसी प्रपोर्शन में मेरी कॉस्ट एलिमेंट चेंज होना चाहिए। इन सिंपल टर्म, प्रोडक्शन अगर 8% बढ़ा है, तो उस एलिमेंट की कॉस्ट भी 8% से बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन अगर 5% से कम हुआ है, तो उस कॉस्ट एलिमेंट भी 5% से कम होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये चेंज हो रहा है। तो ऐसे दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली कॉस्ट हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है। और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है बेटा? चलिए लिखिए अब इसको। क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लिखिए इसमें, the following are the two criteria, the following are the two criteria which must be fulfilled at the same time. The following are the two criteria which must be fulfilled at the same time to qualify for direct cost.
The following are the two criteria which must be fulfilled at the same time to qualify as direct cost. नेक्स्ट लाइन में लिखे क्राइटेरिया नंबर 1. क्राइटेरिया नंबर 1, cost must change due to change in production. Cost must change due to change in production. सेकेंड पॉइंट लिखे बेटा, सेकेंड क्राइटेरिया, such change in cost must be in रेड पेन यूज कीजिएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन लिखने के लिए. रेड पेन नहीं है तो इस वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा आप अभी. Such change in cost must be in direct proportion. डायरेक्ट प्रपोर्शन को रेड पेन से, अब नॉर्मल पेन. Such change in cost must be in direct proportion to the change in production volume. हो गया बेटा. अब आप लिखिए क्राइटेरिया फॉर इनडायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. क्राइटेरिया फॉर इनडायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. बहुत ही सिंपल है. अगर आपको डायरेक्ट क्राइटेरिया पता है तो वही चीज इनडायरेक्ट क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर देगी. अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है या दोनों की दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है तो वो इनडायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है. क्या बोला मैंने? दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है तो वो इनडायरेक्ट है. दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो भी वो इनडायरेक्ट है. लिखिए, even if one of the above criteria is not fulfilled, even if one of the above criteria is not fulfilled, comma, such cost will be an indirect cost. Even if one of the criteria is not fulfilled, such cost will be an indirect cost. हो गया बेटा. चलिए अब दो एक लाइन ड्रॉप करके लिखिए आप. डायरेक्ट कॉस्ट हेडिंग दीजिए आप. इसमें पहला पॉइंट लिखे, इट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो अगर हमें सभी डायरेक्ट एलिमेंट कॉस्ट को एक टर्मोलॉजी यूज करना है तो हम उसको बोल देंगे डायरेक्ट कॉस्ट. फिर कॉस्ट शीट से ये वर्ड डिराइव होता है जो इंटर लेवल पर आपको पढ़ाया गया था. डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है और जो बहुत कॉमनली यूज होता है और वो है प्राइम कॉस्ट. तो सेकेंड पॉइंट लिखिए आप इसमें, डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड कॉमा में प्राइम कॉस्ट.
तो वापस से अपन उसी पंच लाइन पे जाते हैं। पंच लाइन क्या थी? मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट नहीं था। अब अपन आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड। ओवरहेड का ही दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं आता हूं उसी पॉइंट पे वापस दोबारा ना, पहले इसको एक बार लिख देते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहला पॉइंट वही लिखे, इट इज द टोटल ऑफ indirect material plus indirect labor plus indirect expense। सेम ऊपर जैसे हर डायरेक्ट एलिमेंट का टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है, इसी प्रकार से हर इनडायरेक्ट एलिमेंट का टोटल आपके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉमनली नोन एज ओवरहेड। जब पूरे कॉस्टिंग में आप देखेंगे तो बहुत रेयरली ये वर्ड यूज होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कॉमनली जो वर्ड यूज करते हैं दैट द वर्ड इज ओवरहेड। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट is also known as overhead। लास्ट 15 मिनट्स में जो अपन ने डिस्कशन किया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों अपन ने ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझा, क्यों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बाइफरकेट करना सीखा उसका क्राइटेरिया, फिर डायरेक्ट को अदर नेम क्या है, इनडायरेक्ट का अदर नेम क्या है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि जो आपके चैप्टर की हेडिंग है मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम इस चैप्टर में डायरेक्ट एलिमेंट का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। वापस रिपीट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं या जब मॉडर्न अप्रोच दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट के ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इन दोनों अप्रोच में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड दैट इज द इनडायरेक्ट पोर्शन ऑफ कॉस्ट। चाहे हम ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा कॉस्ट निकाले, चाहे हम मॉडर्न अप्रोच के द्वारा कॉस्ट निकाले, डायरेक्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूं एक और बार में, वेदर वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट थ्रू ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दैट इज एबीसी, डायरेक्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम। अब क्वेश्चन उठता है सर ऐसा क्यों? आपके स्क्रीन में ही इसका आंसर है। ये दोनों ही मेथड किस पर फोकस करती है? ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहूंगा कॉपी की जो आपकी टॉप मार्जिन होती है बेटा उसको अपन बिल्कुल जो की पॉइंट होते हैं वो वहां पे लिखते हैं। जो आपके कॉपी की टॉप मार्जिन है वहां पे लिखिए आप ये। डायरेक्ट कॉस्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, डायरेक्ट कॉस्ट को कॉपी के टॉप मार्जिन में, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम अंडर बोथ द मेथड। डायरेक्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम अंडर बोथ द मेथड्स। ब्रैकेट में लिखिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, ब्रैकेट क्लोज। Because both this method methods differ in treatment of overhead, treatment of indirect cost लिख दीजिए, ज्यादा इजी जाएगा। Because both these methods differ in treatment of
इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज ओवरहेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर हुआ बेटा ये? तो जब भी हम इस दोनों कंसेप्ट की बात करेंगे, चाहे ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो चाहे मॉडर्न की बात कर रहे हो, वी हैव नथिंग टू डू विद द डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इट विल रिमेन सेम। जो डिफर करेगा, जो लॉजिकल और इलॉजिकल ट्रीटमेंट जाता है, वो जाता है सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट का, दैट इज ओवरहेड का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द टर्म इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज ओवरहेड विल बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। The very first part is variable overhead, नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, variable overhead, and the second part is fixed overhead। ये बहुत कॉमनली बाइफर्केशन हम यूज करते हैं, ओवरहेड के लिए वेरिएबल ओवरहेड है, ये फिक्स्ड ओवरहेड है। तो थर्ड पॉइंट लिखे इसमें आप, ओवरहेड विल बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस रखिएगा बेटा, वहां पे अपन कुछ लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना स्पेस रखिएगा और थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद फिर लिखिएगा आप वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको ये चीज, फिर से वही पंच लाइन काम आएगी। हमें वेरिएबल ओवरहेड का ट्रीटमेंट देखना है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, या फिक्स्ड ओवरहेड का ट्रीटमेंट देखना है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। मैं देना चाहूंगा बेटा आपको 15 से 30 सेकंड, आप एक बार अपने लेवल पे सोचिए, और मैंने आपको इसकी पंच लाइन लिखा दिया। अगर आप वो पंच लाइन पे फोकस करेंगे तो आप मुझे 100% एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे कि हमें, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं चाहे हम मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं, हमें कौन से ओवरहेड के ट्रीटमेंट को यहां पे डील करना है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। और पंच लाइन आपके पास है, अगर आपने उसको प्रॉपरली एनालाइज किया तो यू विल गेट द राइट आंसर। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर बेटा आपका इन्वॉल्वमेंट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। चलिए बोलो बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, हमें फिर वो पंच लाइन काम आएगी। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न ऑब्लिक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पहली बात तो ये क्लियर है, यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। सेकेंड, एक और बात क्लियर है, हम यहां पर जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो वेरिएबल ओवरहेड का नहीं कर रहे हैं, वो फिक्स्ड ओवरहेड का नहीं कर रहे। हम जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ओवरहेड का कर रहे हैं, एंड ओवरहेड इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल ओवरहेड एज वेल एज फिक्स्ड ओवरहेड। कम्युनिकेशन ये है कि जब भी आप इस चैप्टर को डील करेंगे, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच को आप डील कर रहे हो, चाहे आप एबीसी अप्रोच दैट इज मॉडर्न अप्रोच को डील कर रहे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा ओवरहेड वेरिएबल कितना है, हमारा ओवरहेड फिक्स कितना है। हमें इससे मतलब है क्या तुम इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, अगर हो तो हम तुम्हारा ट्रीटमेंट अलग करेंगे ट्रेडिशनल में और एबीसी में। कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो दो चीजें बहुत क्लैरिटी रखिएगा बेटा, इन्हीं में कहीं ना कहीं फिर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। पहली चीज जो वापस से रिपीट हो रही है, पहली चीज, हमें डायरेक्ट कॉस्ट के ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है जब हम ट्रेडिशनल या एबीसी की बात करते हैं। समझ गए? लॉजिक क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कहीं भी हम ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो जस्ट अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, जब भी हम इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज ओवरहेड की बात करते हैं तो उसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना वेरिएबल ओवरहेड है
कितना फिक्स्ड ओवरहेड है, हमें ओवरहेड से मतलब है, उसके पोर्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बाइफरकेट जरूर अपन कर रहे हैं यहां पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ओवरहेड भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमारा ट्रीटमेंट कभी अलग अलग नहीं होगा वेरिएबल ओवरहेड के लिए और फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। हमें ओवरहेड चाहिए, हमें वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए मैं इसको लिखाऊंगा। अभी पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ओवरहेड को बाइफरकेट कैसे करते हैं इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट का पहला क्राइटेरिया क्या है, जरा याद कीजिए बेटा। क्राइटेरिया नंबर 1, डायरेक्ट कॉस्ट का पहला क्राइटेरिया जरा याद कीजिए, क्या है पहला क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया था कि प्रोडक्शन वॉल्यूम के चेंज होने पर मेरी कॉस्ट चेंज हो रही है क्या। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कैसे हम एक इनडायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में बाइफरकेट करते हैं, तो पहला क्राइटेरिया तो वेरिएबल ओवरहेड फुलफिल करता है। मतलब वेरिएबल ओवरहेड में प्रोडक्शन वॉल्यूम के चेंज होने पर चेंज आता है। वापस रिपीट करेंगे इसको, वेरिएबल ओवरहेड में प्रोडक्शन वॉल्यूम के चेंज आने पर चेंज आता है। मतलब ये पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था? डायरेक्ट कॉस्ट की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। उनमें से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोल पाएंगे। तो यहां पे पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि वॉल्यूम के चेंज होने पर मेरा वेरिएबल ओवरहेड भी चेंज हो रहा है, लेकिन सेकेंड कंडीशन थी कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज होना चाहिए। मतलब जितने परसेंट से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उतने ही परसेंट से कॉस्ट में भी चेंज आना चाहिए, जबकि वेरिएबल ओवरहेड में ऐसा नहीं होता है। अगर वॉल्यूम 10% से बढ़ा तो वेरिएबल ओवरहेड से 3% से बढ़ा, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है 10% से, लेकिन कॉस्ट उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही है बट नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। मतलब सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो यह हमारे लिए कहलाएगा ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड। जो वॉल्यूम के कारण ऐसा ओवरहेड जो वॉल्यूम के कारण चेंज होगा बट नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है बेटा? और जब अपन फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट आपको पता है वॉल्यूम कम ज्यादा होने के कारण चेंज होती ही नहीं, तो क्राइटेरिया 1 यहां पे फुलफिल होता ही नहीं है। चाहे वॉल्यूम आपका कम हो चाहे वॉल्यूम आपका ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। यही पढ़ा है आपने इंटर में। और जब पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो सेकंड वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट प्रपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन तब आता है जब वो चेंज हो रहा हो, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा। समझने के लिए पर्पस था बेटा, एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर जब लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चे को दिक्कत आती है। रेस्ट एश्योर, इस कॉम्पैक्ट बैच में आपको एक कंसेप्ट भी ऐसा डिलीवर नहीं किया जाएगा जो एग्जामिनेशन के काम का नहीं है। हर वो चीज जो एग्जामिनेशन के काम की वही रखी गई है, तभी जाके हम 100% आपको डिलीवर कर पाएंगे विद इन दो 140। और ये बेयर मिनिमम है बेटा, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या समझा अपन ने अभी तक? दो बातें। पहला, डायरेक्ट कॉस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड, अब लिख रहे हैं अपन, हमें ओवरहेड के बाइफरकेशन से कोई मतलब नहीं है कि उस ओवरहेड में कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, हमें ओवरहेड से मतलब है। लिखिए, रेड पेन से लिखिएगा यहीं पे थर्ड पॉइंट में इन्वर्टेड कॉमा में। Bifurcation of overhead. लिखिए इसमें, द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड is of no use in both the methods, is of no use in both the methods because
both the method deals with total overhead, because both the method deals with treatment of total overhead. क्लियर है बेटा ये पूरी बात? चलिए एक बार जल्दी से अपन रिवाइव कर ले। अपन ने चैप्टर चालू किया है, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजी की। रिवीजन बार बार होगा बेटा ना, नहीं तो क्या होता है एक फ्लो में जो चीज करंट चालू है, करंट टाइम पे वो याद रह जाती, क्या पहले पढ़ा था वो भूल जाते। तो थोड़ा मोड़ा आपको लगेगा भी रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये पूरे 40 लेक्चर तक चलेगा। रीजन बहुत सिंपल है, मुझे 140 आवर्स में आपका मैक्सिमम चाहिए। तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है जल्दी से उसको क्विक रिकैप कर ले, ताकि वो चीज अपने पकड़ में रहे। लेक्चर खत्म हो तो अपने पास रिटेनिंग पावर ज्यादा रहे। चैप्टर चालू किया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। टोटल 4 पार्ट में बाइफरकेट किया है। पहला और दूसरा पार्ट रिलेट करता है आपके ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड को, जिसमें एक पोर्शन है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज सीए इंटर, और सेकंड अप्रोच है आपकी मॉडर्न अप्रोच दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और पंच लाइन है एबीसी की मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसी पंच लाइन को लेके हमने 2 पार्ट में बाइफरकेट किया। अगर ये मॉडर्न अप्रोच है तो कोई ना कोई ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। तो जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की बात करते हैं, अभी तक अपन ने ये वर्ड क्लियर नहीं किया, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, आएंगे नेक्स्ट हाफ में आपको मिलेगा ये। जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की बात करते हैं तो हमारे पास उससे रिलेटेड 2 अप्रोच है, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। दोनों ही अप्रोच में डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट को डील ही नहीं करते हैं। दोनों ही अप्रोच में ओवरहेड में कितना वेरिएबल पोर्शन है, कितना फिक्स पोर्शन है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम होता है प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन हम कॉमनली उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड ही ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन आते हैं मॉडर्न अप्रोच। वर्ड अपन ने एक बार डील कर लिया कि उससे 2 निकलते हैं। ओवरहेड वर्ड को अच्छे से देख लिया अपन ने, व्हाट इज ओवरहेड, द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल बी द ओवरहेड। अब अपन ये टेक्निकल टर्मोलॉजी में आते हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है ना? तो देखिए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए बेटा, स्टेप्स इन ओवरहेड। क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी? सीए इंटर। अभी तक अपन ने एबीसी चालू नहीं किया है ना? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। अपन ने यहां पे क्लियर कट लिखा है, हमने अभी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किया है, मतलब अभी हम सीए इंटर पढ़ रहे हैं। आज का पूरा लेक्चर, सेकेंड हाफ भी जो रहेगा इस लेक्चर का, वो भी आपका सीए इंटर ही रहेगा। अभी तक हमने फाइनल का मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट नहीं किया है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे ना। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत क्लैरिटी रखिएगा कि अपन अभी पढ़ क्या रहे। जो भी डिस्कशन है ये आपके इंटर लेवल का है, जो फाइनल लेवल पे 100% आपको काम आएगा। स्टेप्स इन ओवरहेड इन ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं और क्लैरिफाई कर दिया यहां पे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी। इन ट्रेडिशनल अप्रोच, सिर्फ वही स्टेप लिखेंगे बेटा यहां पे जो अपने फाइनल लेवल में काम की है, नहीं तो ये टोटल 5 स्टेप में होता है, लेकिन अननेसेसरी आपका लोड बढ़ा के एग्जामिनेशन के लिए कोई मतलब नहीं है। 5 में से हम 2 स्टेप बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल लेवल में कोई काम की नहीं, सीधा टू द पॉइंट आएंगे जो एग्जामिनेशन के काम की है। स्टेप्स इन ओवरहेड इन ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहली स्टेप होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, इसमें 2 कंसेप्ट इमर्ज होते हैं। पहला कंसेप्ट जो इमर्ज होता है वो होता है अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। फिर सेकेंड स्टेप जो होती है, इसमें होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड।
primary distribution of overhead, secondary distribution of overhead, and the third step is absorption of overhead, जिसमें मेनली अपने लिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 काम की है। सेकेंड स्टेप को डिस्कस जरूर कर लेंगे, लेकिन उसका रोल नहीं है फाइनल लेवल पे। अब 3 ऐसी टर्मोलॉजी है जो आपस में इंटरचेंज हो जाती है अगर इसमें क्लैरिटी ना रहे तो। पहली टर्मोलॉजी है अलोकेशन, सेकेंड टर्मोलॉजी है अपॉर्शनमेंट, एंड थर्ड टर्मोलॉजी है एब्जॉर्प्शन। तो बहुत क्लैरिटी से अपने को इसको समझना है और लिखना भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं लिखना भी है क्योंकि अभी आप मत लिखिएगा, अभी पूरा आपका अटेंशन, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप समझने में लगाइए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तीनों टर्मोलॉजी को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको आपकी कॉपी में लिखा दूंगा, लेकिन बट राइट नाउ पूरा ध्यान आपका समझने में हो। पहली टर्मोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। जब ये 2 टर्मोलॉजी हमारी क्लियर हो जाएगी तो हम स्टेप नंबर 2 डिस्कस करेंगे इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। फिर थर्ड स्टेप जो है वही तो हमारा मेन पार्ट है, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो थर्ड स्टेप ही अपना पूरा चैप्टर का कंटेंट डिलीवर करता है। तो जल्दी से हम पहली स्टेप और सेकंड स्टेप को क्लियर करते हैं ताकि हम मेन स्टेप थर्ड स्टेप पे आ पाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। लिखना कुछ भी नहीं बेटा, पहले पूरा ध्यान समझिए, फिर मैं उसको डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दूंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं। क्या बोला मैंने? ट्रेडिशनल अप्रोच में हम डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं। सपोज मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ध्यान समझिएगा बेटा ना, मैं जानबूझ के भी इसको राइटिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है पहले अगर आपने ओरली कंसेप्ट में ग्रिप बना लिया तो जब अपन उसको राइटिंग में करेंगे डायग्राम के थ्रू तो बहुत इजी जाता है फिर समझना, क्योंकि ओरली माइंड पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो आपको बेनिफिट जरूर करता है थॉट प्रोसेस डेवलप करने में, है ना। इसलिए ओरली जा रहा हूं मैं अभी। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ओवरहेड के खर्चे भी अलग अलग होते होंगे बेटा। कभी भी आप अगर अपना बैंक अकाउंट देखोगे कॉर्पोरेट का या इंडिविजुअल फर्म का, तो कभी भी आपको ओवरहेड नाम से ना कोई डेबिट मिलेगा और क्रेडिट तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता बैंक अकाउंट में। डेबिट कभी भी आपको ओवरहेड के नाम से नहीं मिलेगा। ओवरहेड बंच ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट का टर्मोलॉजी है। ओवरहेड ऐसी कोई टर्मोलॉजी नहीं है जो आप डेबिट या क्रेडिट करोगे अपने बैंक अकाउंट में। डेबिट क्या क्या होता है ओवरहेड के नाम से? रेंट आपका डेबिट होता है, सैलरी डेबिट होती है, इंश्योरेंस डेबिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट होता है। तो ये टर्मोलॉजी डेबिट होती है और इन सभी टर्मोलॉजी को, इनडायरेक्ट टर्मोलॉजी को जब अपन एक टर्मोलॉजी बोलते हैं तो उसको ओवरहेड बोलते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अब जितने भी मेरे कंपोनेंट है ओवरहेड के, वर्ड मैंने बोला कंपोनेंट है ओवरहेड के, अलग अलग न्यूमरस कंपोनेंट मिलकर मेरा ओवरहेड बनता है। पहला कंपोनेंट ले लेते हैं रेंट। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या ये रेंट किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिलेट करता है? 2 जवाब मिल सकते हैं। यस, ये रेंट सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है। दूसरा जवाब मिल सकता है नहीं, ये रेंट 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है। तो इन्हीं से टर्मोलॉजी इवॉल्व होती है अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। अगर वो रेंट सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है, मतलब वो प्रीमाइसेस सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बेनिफिट कर रहा है, तो जब हम उस रेंट को उस डिपार्टमेंट के खर्चों में जोड़ देते हैं तो हम उसको अलोकेशन बोलते हैं। और जब वही रेंट 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है तो एक लॉजिकल बेस लेकर जब हम उन 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम उसी टर्मोलॉजी को बोलते हैं वी हैव डन द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। लेट्स कम ऑन वन टाइम मोर। अलोकेशन का मतलब जब कोई कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ही बेनिफिट करे तो हम उसको बोलते हैं वी हैव डन द अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। जब कोई कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है तो एक लॉजिकल बेस लेकर जब हम वो कंपोनेंट सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वी कॉल्ड इट अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। क्लियर है बेटा? तो देखिए अभी लिखिएगा मत, है ना। अब मैं इसी चीज को आपको बताता हूं। ये मेरे डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी।
ठीक है, मैं यहां पे ले रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड, कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड। पहला कंपोनेंट ले लेता हूं मैं रेंट, दूसरा सैलरी, तीसरा इंश्योरेंस। ये 3 कंपोनेंट मैंने लिया, ठीक है। अब मैं सवाल पूछूंगा हर एक कंपोनेंट से, रेंट, क्या इसका बेनिफिट इन तीनों में से कोई एक डिपार्टमेंट को ही मिल रहा है? जवाब मिलेगा हां, एक ही डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो मैं इसको अलोकेशन बोल दूंगा। जैसे मान के चलिए एक मशीनरी है, रेंट ऑफ मशीनरी, ये मशीनरी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट करती है डिपार्टमेंट बी को। मतलब डिपार्टमेंट बी में एक मशीनरी है, हमने उसे हायर किया है, किराए पर लिया है, तो जब इसका पूरा रेंट मैं डिपार्टमेंट बी में जोड़ दूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वी हैव डन द अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। क्योंकि इफ कंपोनेंट का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट नहीं बोल रहे बेटा अपन, ना ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट नहीं बोल रहे अपन, डिपार्टमेंट बोल रहे। अभी तक तो हमने प्रोडक्ट वाइज डिस्कशन ही नहीं किया, डिपार्टमेंट से ही, ठीक है। सैलरी, पता चला ये सैलरी 2 डिपार्टमेंट को बेनिफिट करती है, डिपार्टमेंट ए को भी, डिपार्टमेंट बी को भी। तो जब ये सैलरी का अमाउंट मैं डिपार्टमेंट ए और बी में एक लॉजिकल बेस क्या होता है वो आगे देख लेंगे अपन, लॉजिकल बेस लेकर जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ठीक है। और तीसरा खर्चा, जब ऐसा कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड जिसका बेनिफिट सभी डिपार्टमेंट को मिलता है, ना कोई एक डिपार्टमेंट को, ना कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट को मिलता है, तो भी हम इस प्रोसेस को अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहते हैं। दिस इज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। तो लैंग्वेज क्लियर है बेटा? उस कंपोनेंट का बेनिफिट, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड? जो रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, म्युनिसिपल टैक्सेस, इन सबको मिला दे तो अपन एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको ओवरहेड, जिसमें कुछ वेरिएबल ओवरहेड भी होगा, जिसमें कुछ फिक्स्ड ओवरहेड भी होगा। इट डजंट मैटर कि वो वेरिएबल है या वो फिक्स्ड है, बस वो ओवरहेड है ना, दैट्स ऑल। तो हम हर एक कंपोनेंट से पूछेंगे क्या तुम्हारा बेनिफिट सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मिल रहा है? अगर एक ही डिपार्टमेंट को मिल रहा है तो उसका पूरा खर्चा उसी डिपार्टमेंट को बियर करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज, बोलिए आगे, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। वेरी गुड। एंड जब उसी कंपोनेंट का खर्चा का बेनिफिट 2 या 2 से ज्यादा, वो ज्यादा कितने वो कुछ भी चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट को मिलता है, तो एक लॉजिकल बेस लेकर जब हम उस खर्चों को, उस कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड को उन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड, बोलिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। वेरी गुड, क्लियर है बेटा? तो मैं चाहूंगा ये डायग्राम आप बना लीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम आप बनाइए अपनी कॉपी में, बाद में आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी जो अभी अपन टेक्निकल इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। हो गया बेटा? बाय चांस नहीं हुआ है तो आप लेक्चर पॉज करके इसको कर लीजिएगा बेटा। मैं मान के चल रहा हूं सभी ने डायग्राम बना लिया है। अब लिखिए आप डेफिनेशन, अलोकेशन। अलोकेशन इसमें लिखिए बेटा, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड बेनिफिट्स अ सिंगल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड बेनिफिट्स अ सिंगल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद लिखिए आप प्रोडक्ट, और इंटेंशनली आप इसको फिर ऐसे क्रॉस कीजिए,
रीजन बहुत सिंपल है बेटा, जब आप रिवाइज करते हो ना तो डिपार्टमेंट वर्ड अंडरलाइन होने के बाद भी कभी उतना आपको इंपॉर्टेंस नजर नहीं आता है। हो सकता है एग्जामिनेशन में यहां पे आप प्रोडक्ट लिख दो, लेकिन डिपार्टमेंट वर्ड लिखा उसके बाद आपने प्रोडक्ट लिखा और प्रोडक्ट को फिर क्रॉस कर दिया, तो रिवीजन में ये वापस ये वर्ड आपके रिवाइव होगा कि नहीं यार यहां पे जो वर्ड है वो डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्ट नहीं है। तो एक बार और क्लैरिटी मिलती है आपको रिवीजन के टाइम पे भी। तो डिपार्टमेंट लिखिएगा, आगे प्रोडक्ट लिखना और प्रोडक्ट को ऐसे क्रॉस कर देना कि प्रोडक्ट वर्ड नहीं है यहां पे। क्या बोला मैंने? व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड बेनिफिट्स अ सिंगल डिपार्टमेंट, कॉमा द प्रोसेस ऑफ एडिंग सच ओवरहेड, the process of adding such overhead to that particular department, the process of adding such overhead to that particular department is known as allocation of overhead. The process of adding such component of overhead to that particular department is known as allocation of overhead. सेकेंड लिखिए बेटा इसमें आप, नेक्स्ट लाइन एक लाइन ड्रॉप करके, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। इसमें लिखिए अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड बेनिफिट्स टू और मोर डिपार्टमेंट, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड बेनिफिट्स टू और मोर डिपार्टमेंट, कॉमा then the process of distributing, then the process of distributing such overhead, then the process of distributing such overhead among the department, then the process of distributing such overhead among the department on a logical basis, logical basis को inverted comma में, then the process of distributing such component among the department on a logical basis, logical basis को inverted comma में, is known as apportionment of overhead. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, इससे आपको बहुत क्लैरिटी से रिकॉल हो जाएगा व्हाट इज अपॉर्शनमेंट। इंटर लेवल पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन में काम किया है, जो रेंट है आप उसको एरिया के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कुछ याद आ रहा है कि जिसके बाद जितना ज्यादा एरिया वो उतना ज्यादा रेंट बियर करेगा। व्हाट यू आर डूइंग दैट टाइम, यू आर अपॉर्शनिंग द ओवरहेड। फिर जो लाइटिंग का खर्चा होता था इलेक्ट्रिसिटी में, वो आप लाइट पॉइंट्स के आधार पे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। व्हाट इज दैट, यू आर अपॉर्शनिंग द ओवरहेड। फिर इंश्योरेंस होता था बिल्डिंग का, तो आप उसको अगेन एरिया के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यही इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी होता था, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी के आधार पे। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ मशीनरी, व्हाट इज एरिया, दिस इज नथिंग बट द लॉजिकल बेसिस फॉर अपॉर्शनिंग दैट ओवरहेड। क्लियर है? चलिए, तो ये पहली स्टेप आपकी होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इवन एट फाइनल लेवल कुछ क्वेश्चन में आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। जब तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आप इसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे मेन स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप से ये मतलब पहले के बाद ही सेकेंड होगा, सेकेंड के बाद ही थर्ड होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अ वेरी सिंपल, नथिंग टू गो इन डिटेल रिलेटेड टू दिस स्टेप, क्योंकि फाइनल लेवल में ना आज तक पूछी गई है ना आगे पूछी जाएगी, लेकिन बस स्टेप है तो एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको रिकॉल होना चाहिए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है, पहले और मैं क्लैरिफाई कर दूं और एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। डिपार्टमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। रिपीट करेंगे आप मेरे साथ, मैंने बोला डिपार्टमेंट दो टाइप्स में हम बाइफरकेट कर सकते हैं, पहला
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या? ऐसे डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली एंगेज है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एंगेज है इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ऐसे डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली एंगेज है इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स आर नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? ऐसे डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना वर्क करने में हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जो बटन्स वगैरह लगाएगा उस शर्ट्स में, तो कटिंग, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द फैब्रिक इनटू द शर्ट। सो ऑल दिस थ्री डिपार्टमेंट आर नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट क्या होंगे? स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट कहीं भी फैब्रिक को शर्ट में कन्वर्ट नहीं करता है, वो मदद करता है कटिंग डिपार्टमेंट को, स्टिचिंग को और फिनिशिंग को, कि जब भी उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत हो वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर देता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट इज सर्विस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जब भी इनके पास जो भी मशीनरी है कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग के बाद, जब भी इस मशीनरी में सर्विसिंग करना होता है या बंद हो जाती है, तो उस मशीन को वापस वर्किंग कंडीशन में लाने का काम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है। सो हियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर है आपको? तो डिपार्टमेंट को हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 2 में। अब आप समझ पाएंगे व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को, कौन से खर्चों को? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। व्हेन द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इससे ज्यादा फाइनल लेवल में सेकेंड स्टेप के नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपके रिकॉल के पर्पस के लिए मैं आपको याद दिला दूं, यहां पे 3 मेथड होती थी जो बहुत इजीली आपको याद आएगी। एक होती थी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बांटते चलते थे जब तक 1 या 2 रुपए ना बच जाए। सेकेंड होती थी आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, और एक तो सभी बच्चों को याद होगी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा है, बस वही होता था बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल लेवल पे अगर 1% भी इसका रोल होता, मैं इस पे हाफ एन आवर का आपको लेक्चर देता, लेकिन मतलब नहीं है। कॉम्पैक्ट बैच है, टू द एग्जामिनेशन ही चलेंगे। क्लियर है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अपन सबसे मेन स्टेप और जो लास्ट स्टेप है स्टेप्स इन ओवरहेड की, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। और यही अपने टॉपिक का मेन पंच लाइन है, मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन नहीं है, अपॉर्शनमेंट नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है। तो थर्ड स्टेप से अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर, बोलिए साथ में, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, इसकी अलग अलग मेथड होती है, लॉजिकल बेस होते हैं। तो ये सीए इंटर का ही टॉपिक, अभी अपन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी यही चलेगा बेटा सीए इंटर का। अब अपन आएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा हम कैसे ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट हाफ का भी अपन ब्रेक लेते हैं, फिर जो भी रिमेनिंग टाइम बचेगा आउट ऑफ 3.5 आवर वो अपन सेकेंड हाफ में कंप्लीट करेंगे। ब्रेक लीजिए आप 10 to 15 मिनट्स का, फिर अपन मिलते हैं बेटा। ठीक है?